یا آپ کے ووٹوں سے جو ایم پی اے بنے ہیں اور جو وزیر بنے ہیں ان کو میں نے بدھ کو بلایا ہے چاروں صوبوں کے، کیونکہ یہ 18ویں ترمیم کے بعد ڈیوالو ہے سارا میٹر جو ہم یہاں ڈسکس کر رہے ہیں۔ یہ تو مس ہاجرہ کا ہم سب شکر گزار ہوں کہ جو ان کی دائرۂ ذمہ داری میں نہیں آتا وہ ذمہ داری پوری کر رہی ہیں۔ یہ سارا صحت کا اور تعلیم کا پیسہ صوبوں کو چلا جاتا ہے۔ وفاق کے پاس جو پیسہ بچتا ہے اس میں قرضے کی ادائیگی اور ڈیفنس، 3 مدوں میں صرف وفاق کے بعد بچتا ہے، سارا فنڈ 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کو چلا جاتا ہے۔ جو سب سے امیر صوبہ ہے وہ سندھ ہے، کیونکہ جو پیسے ملتے ہیں وہ 3 مد میں ملتے ہیں: آبادی، غربت اور ریونیو۔ تو آپ کے پاس ایک ایسا شہر ہے جو پاکستان کو 60% ریونیو ابھی تک دے رہا ہے اور اس صوبے کو 97% دے رہا ہے۔ تعلیم پر سب سے زیادہ پیسہ سندھ میں لگ رہا ہے لیکن تعلیم نہیں آ پا رہی ہے۔ ہم نے بلایا ہے کہ یہ ذمہ داری کتنے عرصے تک جو کہ صوبوں کے حوالے کر دی گئی ہے اس کا کتنا بوجھ وفاق اس صورت میں لے سکتا ہے جبکہ وہ فنڈ نیچے دے دیتا ہے۔ تو جہاں جہاں پر پیسہ لگ نہیں رہا ہوگا اس جگہ پہ لگا دیں گے، اگر تھر پارکر میں نہیں لگ رہا ہوگا تو وہاں لگنا چاہیے، پھر وفاق کرے گی، وہ پیسے صوبوں سے کاٹ لے گی، پھر ایسا ہی ہونا چاہیے نا۔ تو آپ کے پیسے صوبوں کو چلے جاتے ہیں، صوبوں سے پوچھیں گے نہیں لگ پا رہا تھا، کیوں نہیں لگ پا رہا، کم پڑ رہا ہے تو کیا کیا جائے۔ اور تیسری بات ہے کہ میں بھی آخری دفعہ ڈاکٹر بنا ہوں تھر پارکر جا کے، اس لیے کہ 2013 میں گیا تھا جب وہاں پہ اموات بھی ہو رہی تھی اور وہاں کی صورتحال کی بھی میں گیا تھا ایز اے ایم این اے وہاں گیا تھا، حالانکہ حیدرآباد کا ایم این اے تھا، لیکن مجھے ایز اے ڈاکٹر بیٹھنا پڑا کیونکہ بچوں کی اموات اتنی تھی کہ 3 دن میں وہاں کیمپ لگا کر، اور خطرہ بھی تھا کہ میں تو پریکٹس بہت کم کی ہے لیکن پھر بھی میں اپنے آپ کو اتنا گڈ انف سمجھ رہا تھا کہ میں کر سکتا تھا۔ تو تھر پارکر کے ساتھ ہیں میں، اور تھر پارکر کے لیے کرنا بھی چاہتا ہوں، ہو بھی رہا ہے، اور اس کے لیے ہم آپ کے علاقائی کبھی کوشش کر کے میں بس آخری بات کروں گا کہ کسی سیاسی جماعت کو ووٹ مار ڈالیے گا، اپنے آپ کو ووٹ ڈالیں۔ اپنے آپ کا مقصد یہ ہے آپ یا آپ جیسا کوئی ہو، جس نے ٹیوشن پڑھا کے تعلیم مکمل کی ہو، جس نے بس میں لٹک کے سفر کیا ہو، جس نے لائن میں لگ کر پانی کی بالٹی سے گھر میں پانی بھرا ہو۔ پاکستان کے ایوان 98% پاکستانیوں کے لیے قانون سازی کے لیے بنے۔ جب ان کی ریپرزنٹیشن ہی وہاں نہیں ہوگی، جنہوں نے دکھ ہی نہیں دیکھا ہوگا، درد ہی نہیں دیکھا ہوگا، پاکستان کے عوام کے مسائل سے آگہی نہیں ہوگی، تو آگہی والے بھی نہیں چاہیے، وہ جو ان تمام مسائل سے نبردآزما ہوں ان کو ایوانوں میں بچائیے، ورنہ تقدیر نہیں بدلنے والی۔ سر ایک ریکویسٹ ہوگی آپ سے، 2 کوئک کوسچنز لے لیتے ہیں۔ جی پلیز۔ آپ سے ریکویسٹ کیا ہے کہ کائنڈلی شارٹ کوسچن، ٹو دا پوائنٹ کوسچن۔ جی میڈم آپ۔ السلام علیکم، شازیہ اکرم، یونیورسٹی آف آرکیٹیکٹ اینڈ فوکل کوسچن فرام Sayyid Alauddin University of Arts and Heritage, Jamshedpur. We are very thankful that Jamshedpur University is taking हमारे पास फंडिंग एनरोलमेंट फंड की तरफ से स्कॉलरशिप मिलती है। मेरा जो कंसर्न है कि हम लोग 4 नए प्रोग्राम स्टैब्लिश करने जा रहे हैं यूनिवर्सिटी में। वी आर जनरेटिंग एंटरप्रेन्योर्स, यंग एंटरप्रेन्योर्स फॉर द कंट्री। हमारे पास जो डिसिप्लिन है दैट्स आर्किटेक्चर, फाइन आर्ट्स, textile design, communication design, and 4 new disciplines are coming like product design, interior design, fashion design, and ceramic design. So, पर प्रॉब्लम ये है कि जब से हमारे पास प्रोग्राम बढ़ रहे हैं और स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं, हमारी स्कॉलरशिप कम होती जा रही है from last 2 years. So my request is Madam Hajra and the secretarial staff of the team कि हमारी स्कॉलरशिप बढ़ाएंगे, and we are acquiring students from Kaliकोda. हमारे पास पूरे पाकिस्तान से स्टूडेंट्स आते हैं, फ्रॉम बलूचिस्तान, KPK, कश्मीर एंड एंटायर स्टेट छत्तीसगढ़, हरियाणा, कश्मीर। तो इन जगहों से जितने स्टूडेंट्स आते हैं उनके लिए आर्ट एंड डिज़ाइन इंस्टीट्यूट की रिक्वायरमेंट, उनके चीज़ों को फुलफिल करना बहुत मुश्किल होता है। फिर हमारे पास हॉस्टल फैसिलिटीज़ हैं तो फीस की मद में बहुत ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं।
due to the very good scholarship from the team from last many years, our students are like they are now very successful stories behind our alumni. So internationally हमारे इंस्टीट्यूट्स को और फंड को जो है रिप्रेजेंट करते हैं. So I request is please improve the scholarship for the new students ताकि वो लोग भी इसी तरह जो है ना वो betterment of the country. Thank you so much. बहुत अच्छे, ज़बरदस्त अगर इस एरिया में भी काम हो रही है. वफाक तक तो आपकी बराह रास्त मैडम हाजरा बैठी पहुँच की होगी. सूबों को हमने बुलाया हुआ है जिनके पास स्कॉलरशिप का 80% वसाइल है, तो वो पूछना है वो कहाँ लग रहे हैं, और लग रहे हैं तो फिर सही जगह पे लग रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है. तो इसमें बैठ के बात करेंगे इंशाल्लाह. तो बहुत ज़रूरी है कि मसाइल होते हैं, हर जगह होते हैं, वो करप्शंस भी होती हैं, लेकिन उसका भी एक करप्शन को कहते हैं इट इज़ अ बाई प्रोडक्ट ऑफ डेवलपमेंट. तो अमेरिका में भी होती होगी थोड़ी बहुत, एक ईंट कम लगा दी तो, लेकिन हमने शायद हद कर दी है. हमने डेवलपमेंट को बाई प्रोडक्ट ऑफ करप्शन बना दिया है. तो इसके बाद तो सूरत हाल को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है. तो बहरहाल इस पर काम कर रहे हैं इंशाल्लाह. जी मैम. मेरा नाम सना है, मैं हिंदुस्तानी स्कूल ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, फोकल पर्सन हूँ. और हिंदुस्तानी स्कूल जो है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो हम लोग काफ़ी एलीट स्कूल में इस्तेमाल किए जाते हैं. बट मैं यहाँ पर ये बताना चाहूँगी कि हमारे पास डिसिप्लिन फाउंडेशन, किरण फाउंडेशन और मुख्तलिफ NGO के स्टूडेंट जो है वो हमें प्रोवाइड करते हैं और हमारे कल्चर में शामिल होते हैं. इसके लिए बहुत शुक्रिया हूँ पाक की कि उन्होंने जो एक इनिशिएटिव किया और हमें कुछ स्कॉलरशिप फराहम की थी इनिशियली, जो कि मेरे साथ 15 से 10 से लेकर 5 है. तो एक फेज को प्रूव कर दे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमें के लिए स्कूल का हमें ज़रूरत नहीं है. हमें इस तरह के एंडाउमेंट फंड और गवर्नमेंट सपोर्ट की मिलती ही है टू बी ऑनेस्ट. और हमारे स्टूडेंट्स जो इदारों से निकल के हमारे पास आके पढ़ते हैं, अगर आप उनकी ग्रोथ और प्रॉफिट देखें जो माशाल्लाह अभी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जो मास्टर प्रोफेसर करके वापस आए हैं, तो आप खुद ही आपको प्राउड फील करेंगे. और आई थिंक इंटरडिसिप्लिनैरिटी है जिस पर हम बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं कि आर्ट एंड डिज़ाइन सबके लिए हमारे पास, चाहे नर्सिंग हो या मेडिसिन हो या कुछ भी हो, हम कहीं से भी अपना कोई ना कोई रिलेशनशिप ढूंढ लेते हैं एज एन आर्टिस्ट. तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट यही है कि इसको इंशाल्लाह कोई चीज़. थैंक यू. इंडस वैली की वजह से प्रॉब्लम ये आ रही है, तो इतना अच्छा इदारा है कि जो मुहिबान पाकिस्तान है वो ये कहते हैं कि भाई ज़रूरत क्या है कराची में पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड डिज़ाइन ले जाने का, वहाँ पर इंडस वैली है ना, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स ले जाने की क्या ज़रूरत है. तो फिर मैंने कहा नहीं, वो आबादी इत्तेफाक से अब इसकी 30-35 लाख नहीं है, अगर सही गिन लिया तो 3.5 करोड़ से ज़्यादा है. तो इंडस वैली 6-7 चाहिए हमें, तो हम ले आते हैं जहाँ जहाँ पर भी है. तो इंशाअल्लाह ठीक है, करेंगे, इस पर भी करेंगे. ये मदद भी बहुत ज़रूरी है. मेरा नाम दिलशद भट्ट है, फीड को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. आपने जिस तरीके से कहा कि 80% जो फीमेल हैं और डॉक्टर्स होते हैं और घर पे बैठ जाती हैं, चूल्हे देख ली आई थिंक आई एम द फर्स्ट वन जो PhD क्रिएटिव इंडस्ट्रीज इन आर्ट प्रैक्टिसेस का इंस्टीट्यूट हम तकरीबन 5,000 से ऊपर बच्चे में पढ़ाते हैं. अभी तक मेरी फील्ड का एक बच्चा ऐसा नहीं है जो कि जॉबलेस. लड़कियां जो हैं जो कि पढ़ भी गई हैं, शादियां भी हो गई हैं, मुल्क से बाहर भी चली गई हैं, ऑनलाइन वर्क करें क्योंकि ग्लोबल आपके पास पूरी विलेज बन चुका है. तो इस तरीके से अगर आप इसके अंदर ज़्यादा स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करते हो तो आई श्योर कि लास्ट हमारे स्टैटिस्टिक्स में 42% बच्चों ने अपने खुद ऑनलाइन एंटरप्रेन्योर्स बन चुके हैं और बिजनेसेस कर रहे हैं. कराची में बैठे हुए, पाकिस्तान में बैठे हुए. इसके अंदर ज़्यादा स्कोप और ज़्यादा बढ़ जाएगा जब आपके पास स्कॉलरशिप्स और प्रोवाइड होगी. तो ये कि ये स्किल बेस्ड सारी चीज़ें, स्किल बेस्ड प्रोग्राम है. सारे वर्ल्ड ओवर नीड है. आर्ट और डिज़ाइन किस जगह पे नीड नहीं होती, उसकी हर जगह पे नीड है आपके पास. जैसे कि वो कह रही थी कि हर जगह पे बैंकिंग सेक्टर है, मेडिकल सेक्टर है, हार्डकोर सेक्टर के अलावा
हर जगह बनी है। जी कौम का चेहरा बनाता है ये। ज़बान की दुरुस्ती भी बहुत ज़रूरी है और हम सब के लिए ज़रूरी है कि हमारे सोच की शक्ल जो है वो दुरुस्त हो जाए। जो सोचेंगे वो करेंगे, जो करेंगे वो आदत बनेगी, जो आदत ठहर जाएगी वो किरदार बनेगा, और किरदार ही मुकद्दर होता है।